Dear students, in this video we are going to study evolution of DNA from RNA. You all have heard that DNA is the genetic material, and there are a few exceptional cases as like in case of viruses where RNA can also be genetic material, but most of the organisms they possess DNA as genetic material. You know that genetic material is a molecule which controls characters of an organism. The characters or the features they are developed because of specific type of proteins formed in our body. And what type of proteins will be formed in our body or in a particular species, it will be all decided by the type of genetic material. जैसे यहाँ पर एक थ्रेड जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको आप डीएनए या आरएनए लेबल कर सकते हैं। तो जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको आप डीएनए या आरएनए, जैसे वायरसेस हैं तो उसमें ये आरएनए भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्पीशीज़ में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो जो भी इंफॉर्मेशन इस जेनेटिक मटेरियल के पास स्टोर्ड है, दिस इंफॉर्मेशन विल बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ एक कोड लैंग्वेज रहती है डीएनए या आरएनए की फॉर्म में, और उस डीएनए या आरएनए की कोड लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है प्रोटीन्स की फॉर्म में। इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। ये एक्सप्रेशन कैसे होता है ये अब इसी चैप्टर में आप नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टडी करेंगे। लेकिन जैसे भी प्रोटीन्स हमारी बॉडी में एक्सप्रेस होते हैं, उसी तरह के हमारी बॉडी में फीचर्स डेवलप होंगे। Say for an example, we can again quote the body hair color. We have hair color like black, golden, brown or grey. We have different shades of our body hair. But this is a feature. How this body hair color is developed in us? How it is developed in our body? This is all because of presence of special type of proteins which give color to our hair. But how these proteins are formed? What type of proteins will be formed? This is all decided by our genetic material. Okay, so the type of features will be decided by the type of proteins formed, and the type of proteins formed will be all decided by the genetic material. We can compare our body hair color with that of other animals. Say for example, in case of cow, you all know that cow has white hair. Why white hairs are developed in case of cow? Why they are different from our body hair color? Because the cow has different type of genetic information. This different genetic information will give rise to formation of different type of protein, and formation of different type of protein will give rise to expression of different type of characters of the features. That's why cow has white hair and we have black hair. Okay, now it is an interesting fact, RNA has been the first genetic material. In last videos we have discussed that both DNA and RNA can behave as genetic material. They have a few features that can give them a share of genetic material. But if we compare DNA and RNA, then RNA is not the suitable genetic material. Actually, DNA is the most suitable genetic material. But what I am saying, during evolution of life, RNA has been the first genetic material. जब अर्थ पर सबसे पहली सेल का इवोल्यूशन हुआ था तब डीएनए नहीं था, देयर वाज आरएनए। आरएनए वाज कंट्रोलिंग ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ए सेल। तो ऐसा क्या हुआ कि आरएनए जो सबसे पहले इवोल्व हुआ था उसको रिप्लेस करके इस डीएनए ने अपनी जगह बना ली। हाउ इट वाज रिप्लेस्ड एंड व्हाई इट वाज रिप्लेस्ड? आरएनए में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि डीएनए ने उसे रिप्लेस कर दिया, और ये रिप्लेसमेंट कैसे हुई? यही हमारा आज का टॉपिक है कि जो जेनेटिक मटेरियल सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल रहा था उसमें ऐसे क्या चेंज आए
उसमें कैसे इवोल्यूशन हुई कि वो डीएनए में कन्वर्ट हो गया। ओके, अभी आप चैप्टर्स जब नेक्स्ट चैप्टर्स को इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे तब आप देखेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है उससे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, मीन्स हाउ द इंफॉर्मेशन विल बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। लेकिन जैसे ही आप उन टॉपिक्स को स्टडी करना शुरू करोगे आप देखोगे जितनी भी सेलुलर मशीनरी है, एक सेल के अंदर जो जो भी कंपोनेंट्स या जो भी रॉ मटेरियल्स, कोई भी सामान जो चाहिए जिससे प्रोटीन्स बन सकते हैं, वो सारा का सारा जो मशीनरी है दैट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड दिस आरएनए। यहाँ पर हमने लाइन लिखी है आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। इसका ये सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि पूरी की पूरी सेलुलर मशीनरी आरएनए के लिए बनी है। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस आरएनए। मीन्स अगर हम आरएनए को सेल से निकाल देते हैं तो प्रोटीन फॉर्मेशन किसी भी हालत में नहीं हो सकती है। इसको समझने के लिए यहाँ पर एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। आरएनए एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स इन सेल। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ mRNA। एम यहाँ पर मैसेंजर आरएनए को एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है। मैसेंजर जब हमने वर्ड यूज किया दैट मीन इट हैज ए स्पेसिफिक मैसेज, इट इज हैविंग द मैसेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कैसा बनेगा, इट हैज इंफॉर्मेशन। ओके, देन टीआरएनए मीन्स ट्रांसफर आरएनए। इन सभी आरएनएस के बारे में आप अभी अगले वीडियोस में पढ़ेंगे भी, अभी हम सिर्फ एक ब्रीफ आउटलाइन इनकी ले रहे हैं। तो mRNA हैज ऑल द मैसेजेस हाउ द प्रोटीन्स विल बी फॉर्म्ड, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड। लेकिन ये जो प्रोटीन्स बनते हैं ये कैसे बनेंगे? प्रोटीन्स आर द चेन्स ऑफ अमीनो एसिड। जैसे ये एक चेन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, दिस इज ए चेन एंड दिस राउंड स्ट्रक्चर्स आर द अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स जिनको आप प्रोटीन्स बोलते हैं वो एक अमीनो एसिड की चेन होती है। ये अमीनो एसिड की जो चेन है इसमें कितने अमीनो एसिड्स, हाउ मैनी अमीनो एसिड्स विल बी प्रेजेंट इन ए चेन ऑफ प्रोटीन, और इसके साथ साथ इस चेन में कौन से टाइप के अमीनो एसिड्स और उनके सीक्वेंस क्या रहेगी। सीक्वेंस नंबर, कितनी लंबी चेन होगी, टाइप 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं तो उन 20 टाइप्स में से कौन से अमीनो एसिड्स इस चेन में रहेंगे, और सीक्वेंस वो किस सीक्वेंस में आएंगे। क्या सबसे पहला अमीनो एसिड सबसे पहले आएगा, उसके बाद कौन सा अमीनो एसिड आएगा सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, जो भी उनकी सीक्वेंस है वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल के पास स्टोर्ड है। तो मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज है कि अमीनो एसिड की चेन कितनी लंबी बनने वाली है, उनका नंबर कितना रहेगा, टाइप्स के अमीनो एसिड्स कौन से रहेंगे, उनकी क्या सीक्वेंस रहेगी। एवरीथिंग विल बी दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन mRNA। लेकिन इन अमीनो एसिड की चेन्स को बनाने के लिए ये अमीनो एसिड्स को असेंबल भी करना है एक जगह पे लाना भी होगा। तो उसको लाने के लिए यहाँ पर हेल्प करते हैं ट्रांसफर आरएनए। रोल ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज टू कैरी द स्पेसिफिक amino acid, and then rRNA is referring the ribosomal RNA। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं और प्रोटीन फैक्ट्रीज तक ये जो सामान यहाँ पर क्या है, अमीनो एसिड्स, उनको लेके आना है और उन रॉ मटेरियल्स को एक खास पर्टिकुलर सीक्वेंस में जोड़ना है। वो मैसेज, वो इंफॉर्मेशन वो mRNA के पास है। तो इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर mRNA which has message, I have message for how the proteins will be formed, what type of protein will be formed. This is tRNA, it is carrying a specific amino acids, I carry amino acids। तो क्या बिना इंफॉर्मेशन हमारी अमीनो एसिड्स की चेन बन सकती है? नहीं बन सकती। क्या इंफॉर्मेशन सिर्फ
हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन है कि अमीनो एसिड की चेन कितनी लंबी बननी है, उसमें कौन से अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, हमें रॉ मटेरियल्स को लाना पड़ेगा। एंड रॉ मटेरियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन चेन इज द अमीनो एसिड। हु इज गोइंग टू कैरी दिस अमीनो एसिड? इट विल बी द टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और इन अमीनो एसिड्स को फैक्ट्री तक लेके जाना है। फैक्ट्री इज अवर राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री को राइबोसोम्स कहते हैं। लेकिन ये राइबोसोम यानी पूरी की पूरी प्रोटीन फैक्ट्री भी किससे बनी हुई है? दिस इज ऑल मेड अप ऑफ आरएनए। तो आप देखिए, फैक्ट्री आरएनए से बनी है। फैक्ट्री तक सामान जो रॉ मटेरियल है वो कौन लेके आ रहा है? टीआरएनए लेके आ रहा है, ट्रांसफर आरएनए लेके आ रहा है। और इस फैक्ट्री में जब ये अमीनो एसिड्स आ जाएंगे तो उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा, चेन कैसे बनाई जाएगी? हु इज ऑल गोइंग टू डिसाइड? दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन एमआरएनए। तो ये जो चेन है, ये आरएनए हमारा, और ये कितनी लंबी चेन है, इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं और अमीनो एसिड्स की क्या सीक्वेंस है, दिस इज ऑल डिसाइडेड बाय आवर आरएनए। सो सेलुलर मशीनरी इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस आरएनए। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि आरएनए बेचारा डाउट में है कि मुझ में ऐसा क्या फॉल्ट है, वाई आई एम नॉट द जेनेटिक मटीरियल। सबसे पहले चेयर आरएनए को मिली थी, सबसे पहले ये इवोल्यूशनरी फेज में आरएनए जेनेटिक मटीरियल था, लेकिन इसमें फॉल्ट क्या थे? फॉल्ट कुछ ऐसे थे। सबसे पहले कि ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, और कोई भी जेनेटिक मटेरियल की फीचर होती है कि वो अपनी कॉपी जरूर करता है। जैसे ये अगर हम आरएनए बनाते हैं तो जो सेल डिवाइड करती है, रिप्रोड्यूस करती है, तो हमेशा सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करने के लिए। ये तो आप बहुत सिंपल से समझ सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशंस को भी स्टोर करते हैं, ऑर्गेनिज्म कैसा डेवलप होगा। इसके साथ साथ उस जेनेटिक मटेरियल की एक और फंक्शन रहता है कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी पास होना है, तभी तो पेरेंट्स के फीचर्स नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो ये कॉपी अपनी करेगा और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। लेकिन जब हम कॉपी करते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि एरर आ जाते हैं। तो एरर आ गया, इस पेरेंटल डीएनए से जब ऑफस्प्रिंग में डीएनए पास हो रहा था, कॉपी की गई थी, तो बाय चांस कुछ ऐसा हुआ कि एरर आया। लेकिन यहाँ पर एरर ट्रेस आउट कैसे किया जाएगा? कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर कॉपी गलत हुई है, कि कोई न्यूक्लियोटाइड गलत जोड़ा गया है? सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होने की वजह से इसकी प्रूफ रीडिंग नहीं हो सकती। प्रूफ रीडिंग वाज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। ओके, तो ये तो इसका सबसे पहला फॉल्ट था कि प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाती थी, एरर इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। कॉपी होते हुए क्या एरर आ गया है वो इजीली ट्रेस आउट नहीं हो सकता। और जब एरर पास होंगे एक पेरेंटल जनरेशन से उसकी ऑफस्प्रिंग्स में अगर एरर्स पास होंगे, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेरेंट की जो फीचर्स हैं वो एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे? नहीं होगा, ये ऑफस्प्रिंग चेंज हो जाएंगे और हर बार थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होगा, तो ऑब्वियसली उस स्पीशीज में बहुत ज़्यादा एरर्स इकट्ठे हो जाएंगे, जो एक जेनेटिक मटेरियल की सुटेबल फीचर नहीं कही जा सकती। जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना चाहिए, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी कभार बदले, हर बार ना बदले। ओके, तो जो भी चेंज आया है, कोई एरर आया है, उसको ट्रेस आउट करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल था। इसके बाद इसका केमिकल स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो इसके पास एक यूरेसिल नाम की नाइट्रोजनस बेस होती है जो इसके स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बनाती है, और इसके साथ साथ इसमें जो राइबोस शुगर है, आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ये पेंटोज शुगर है
राइबोस शुगर इसके सेकेंड कार्बन पर, यहाँ पर इस पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एंड दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेक इट लेबाइल, ये इसको रिएक्टिव बना देता है। तो आरएनए की चेन में दो मेजर डिफेक्ट्स हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये स्ट्रक्चरली भी स्टेबल नहीं है। एक तो यही है कि इसमें कोई भी एरर आता है तो उसको इजीली देख नहीं पाते हैं, तो वो एरर एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे। दूसरा ये है कि स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं है। रीज़न ये रहा कि एक तो यूरेसिल है जो इसको अनस्टेबल बनाती है, और दूसरा कि इसकी जो राइबोस शुगर है उसमें जो सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इसको केमिकली ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है। तो जेनेटिक मटेरियल का रिएक्टिव होने का मतलब ये है कि वो और ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबिलिटी हमें नहीं चाहिए क्योंकि फीचर्स स्टेबल नहीं रहेंगे, हर जनरेशन में चेंज नजर आएंगे। और थर्ड पॉइंट, इट एक्ट एज कैटालिस्ट्स। कैटालिस्ट मीन्स एंजाइम्स। ये बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनको ये कंट्रोल कर सकता है, उनको स्पीड अप कर सकता है। इट कैन बिहेव एज कैटालिस्ट। तो जो जेनेटिक मटेरियल खुद रिएक्शंस में इन्वॉल्व है तो उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो स्टेबल रहेगा। तो हमारा जो सबसे इसमें ये आरएनए सोचता है कि मुझ में फॉल्ट क्या है। फॉल्ट तो बहुत सारे हैं और इन सभी फॉल्ट्स की वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये स्टेबल नहीं है, इसमें म्यूटेशंस आ जाते हैं। तो अब तलाश थी कुछ ऐसे जेनेटिक मटेरियल की जो स्टेबल हो, जो भी इसमें प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स थे उनको कवर अप करना है। तो इसको कवर अप करने के लिए हमारे पास डीएनए आएगा। तो यहाँ पर हमारा आरएनए है, ये बहुत परेशान है कि मुझ में इतने सारे फॉल्ट्स हैं, तो उस जेनेटिक मटेरियल की चेयर पे तो ये नहीं रह सकता। तब क्या करें? किया कुछ ऐसे जा सकता है कि सबसे पहला पॉइंट कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड था, तो यहाँ पर एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल हमें चाहिए जो डबल स्ट्रैंडेड हो, जिसमें एरर्स को डिटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर अगर ये एक स्ट्रैंड है जैसे आरएनए का है, तो ऐसा एक जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व हुआ जो डबल स्ट्रैंडेड था। ओके, डबल स्ट्रैंडेड। उसके बाद नेक्स्ट फीचर, सबसे पहले तो ये हुआ कि डीएनए में एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से जो भी प्रूफ रीडिंग है वो बहुत आसानी से हो सकती है। अगर एक स्ट्रैंड पर कोई फॉल्ट आता है तो जो उसको देख के नया स्ट्रैंड बनना है उसमें कोई एरर आता है तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। जैसे अगर अभी आप नेक्स्ट वीडियोस में सब कवर भी करेंगे। सपोज यहाँ पर हमने एक सीक्वेंस लिखी डीएनए के एक स्ट्रैंड के ऊपर, जैसे ये रेड वाला स्ट्रैंड है, इसके ऊपर हमने इसको हम रेड दिखा देते हैं, ये एक सीक्वेंस है। ओके, और अब इस स्ट्रैंड के ऊपर एक और नया स्ट्रैंड तैयार करना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। अगर एक तरफ एडनिन है दूसरी तरफ थायमिन आएगी, इधर एडनिन, यहाँ पर साइटोसाइन एंड साइटोसाइन। ये तो हुआ एक नॉर्मल रेप्लिकेशन, मतलब नॉर्मल स्ट्रैंड बन गया। लेकिन सपोज हम यही वाला स्ट्रैंड फिर से ले लेते हैं, ATGGG, सेम स्ट्रैंड है, और अब नया स्ट्रैंड बनने की तैयारी है। तो नया स्ट्रैंड बनते हुए सपोज यहाँ गलती से एडनिन लग जाता है या ग्वानिन लग जाता है या साइटोसाइन कोई भी लग जाता है, मतलब थायमिन नहीं लगता, और बाकी स्ट्रैंड नॉर्मल है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो गलत न्यूक्लियोटाइड है ये एकदम से ट्रेस आउट हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं हो सकती, इसके साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहा। ये पहले वाला स्ट्रैंड है, पुराना स्ट्रैंड है, ये जो नया स्ट्रैंड तैयार हुआ है जिसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है, ये एकदम से डिटेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके साथ पेयर नहीं कर पा रहा। तो इसको यहीं से, इसी रॉन्ग बेस पेयर को यहीं से हटा दिया जाता है। तो दिस इज़ ए वेरी easily detected mistake.
डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से इसकी मिस्टेक को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम थी कि इसमें एक ऐसी नाइट्रोजनस बेस है यूरेसिल जो इसको अनस्टेबल बनाती है। तो अब यूरेसिल की बजाय डीएनए में थाइमीन बेस पेयर को इंट्रोड्यूस किया गया। यूरेसिल वाज रिप्लेस्ड बाय थाइमीन। ओके। और थर्ड के क्योंकि आरएनए में राइबोज शुगर है जिसके सेकंड कार्बन पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसकी वजह से ये लेबाइल रहता है, प्रॉब्लम करता है, इसको केमिकली रिएक्टिव बना देता है, उसकी बजाय डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर को इंट्रोड्यूस किया गया। फर्क ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर में यहाँ पर सेकंड कार्बन पे बजाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप के सिर्फ H मिलेगा आपको। दिस O is absent here. That's why it is deoxy. One oxygen is less. Deoxy. ओके। तो यहाँ पर ये इसमें टर्निंग पॉइंट्स है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल रहा लेकिन उसी से एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल डीएनए का इवोल्यूशन हुआ। चेंज आरएनए में ही हुए हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड बना दिया गया। इसके पास जो यूरेसिल प्रॉब्लम कर रही थी उससे थाइमीन उसको थाइमीन ने रिप्लेस कर दिया। इसमें जो राइबोज शुगर प्रॉब्लम कर रही थी उसको डीऑक्सीराइबोज शुगर में रिप्लेस कर दिया गया। और आज हमारे पास ये सबसे ज़्यादा सुटेबल डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ओके। सो दिस वाज हाउ evolution of DNA from RNA take place, and I hope this topic is clear to you.